Welcome to this recorded video lecture. इस lecture के अंदर we are going to continue with our analysis of trusses and we are going to talk about a new method for analysis. ठीक है, तो let's jump into it and what we have here is we have a new method which we call the method of sections. And if you remember अभी हम लोग जो method use करते हुए आ रहे हैं that is known as the method of joints because उसमें हम लोग हर joint के ऊपर summation f equals to 0 यानी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को राइट करते हैं एंड वी मूव फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट एंड वी फाइंड आउट ऑल द फोर्सेस that are present in our truss structure. Now sometimes what is going to happen, you only need forces in a few members of the truss, and in this case going through all the joints might not be feasible. So we have another method which actually comes in handy in these cases. अब इस method का special purpose जो है वो ये है कि whenever we are in need of only a few forces, then this is the method you should use because this is going to help you reduce the number of equilibrium equations you will need to write to find out your answer. ठीक है, तो method ये है कि the basic principle is कि if a truss is in equilibrium, then any segment within the truss is also in equilibrium. अब इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि we can look at a single truss member. ठीक है, अब इस member के अंदर what we have is we have a member which is in tension. तो अगर हम इसको बीच से किसी भी पॉइंट से ब्रेक कर देते हैं, हम इसको सेक्शन कर देते हैं दो डिफरेंट पार्ट्स में, then both the parts are also in tension. And since this member is in equilibrium, both these segments are also in equilibrium. ठीक है, तो this is the basic idea of the method of sections. अब same thing can also apply to the member if it is in compression. ठीक है, तो अगर ये same member compression के अंदर होगा तो we will have the exact same thing क्योंकि पूरा member compression में है तो उसके दोनों segments भी compression में है. And since the member is in equilibrium, then both the segments are also in equilibrium. ये दोनों cases तो single truss member के थे, but you can apply this method to an entire structure as well. So if we have, for example, this structure, and we decide that we want to section it at this AA section, ये जो AA की line है, we want to divide our structure into two parts, and we want to divide it across this line. That is possible. And if this entire structure is in equilibrium, तो जो left hand side और right hand side बन के आ रही हैं, ये दोनों साइड जो बन के आएंगी आपके पूरे स्ट्रक्चर की, तो ये पूरी साइड इक्विलिब्रियम में होगी और ये पूरी साइड भी इक्विलिब्रियम में होगी. Now you will need to understand कि you don't necessarily need to section it in the middle. ठीक है, तो आपको बीच में से सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती. What we can do is we can section it anywhere along this line. So we could just as easily section this thing here or here. Still both the members are going to be in equilibrium. जो दोनों sides हैं, both sections are going to be in equilibrium. सही. तो अगर मैं ये वाली इस अपने डिवीजन की बात करूँ, इस लाइन के थ्रू अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, this side right here, this side would look like this. ठीक है, तो आपके पास तीन मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनको आपने सेक्शन किया है, तीनों के क्रॉस आप में कोई ना कोई फोर्सेस आ रही हैं. अब नाउ इफ आई एम कटिंग इट हेयर और आई एम कटिंग इट समवेयर हेयर, द फोर्सेस आर गोइंग टू रिमेन द सेम. इस मेंबर की फोर्स बेसिकली इस जॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, ये वाली फोर्स इस जॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, ये फोर्स भी इस जॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है. ठीक है, तो यू कुड मेक दिस थिंग जस्ट लाइक दिस. एंड दिस वुड हैव बीन सफिशिएंट. यू डोंट नीड टू ड्रॉ दीज कट सेक्शंस. आप इनको ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, आप खाली फोर्सेस को जॉइंट्स के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ वी आर सॉल्विंग और एनीथिंग, वी जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ सेक्शनिंग वर्क्स. तो यू कैन डिवाइड दिस थिंग इनटू टू पार्ट्स और जो आपके पार्ट्स बन के आ रहे हैं
इन पार्ट्स के अंदर वी कैन जस्ट यूज ईदर साइड टू अप्लाई इक्वेशंस और इक्विलिब्रियम। हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर भी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हाउ डू यू सिलेक्ट द सेक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कैसे पता चलेगा मुझे किधर से डिवाइड करना है? तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें, तो यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड योर ट्रस्ट इनटू टू कंप्लीटली सेपरेट पार्ट्स। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है ये लाइन दो डिफरेंट रिजिड बॉडीज प्रोड्यूस कर रही होगी। तो इफ यू कम हेयर, तो यू हैड अ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में था, हमने उसको डिवाइड किया, एक और स्ट्रक्चर निकल के आया, ये स्ट्रक्चर भी इक्विलिब्रियम है, दिस स्ट्रक्चर इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। अब ये जो इक्विलिब्रियम में स्ट्रक्चर आ रहा है इसके ऊपर समेशन एफ समेशन एम की इक्वेशंस अप्लाई हो सकती हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर समेशन एफ एक्स एफ वाई और एम अप्लाई करना चाह रहा हूँ, then how many unknowns can I solve? I can solve for 3 unknowns in this system. ये हम rigid body वाले चैप्टर के एनालिसिस में करते हुए आ रहे हैं। Since this is in 2D, we write 3 equations, and from 3 equations we can find 3 unknowns. तो whenever we divide our structure, we try to divide our structure in such a way कि we only have 3 unknown forces that are generated because of this sectioning. तो अगर मैं इस फॉर एग्जाम्पल लाइन के अक्रॉस, इस एन लाइन के अक्रॉस अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहा हूँ, देन माई लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू हैव 3 अननोन फोर्सेस। कौन सी अननोन फोर्सेस होंगी? इस पॉइंट के ऊपर एफ बी डी अप्लाई हो रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर ही एफ बी ई भी अप्लाई हो रहा है, और सी के ऊपर एफ सी ई अप्लाई हो रहा है। तो ये 3 अननोन फोर्सेस इस सेक्शनिंग की वजह से प्रोड्यूस हुई। तो अगर मुझे सिर्फ ये 3 फोर्सेस रिक्वायर्ड होती तो मुझे मेथड ऑफ सेक्शनिंग करने का फायदा था, बिकॉज आई वुड डिवाइड इट फ्रॉम हेयर। मैं किसी भी एक साइड को पकड़ के उसको रिजिड बॉडी की तरीके से सॉल्व कर लूंगा, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड द 3 अननोन्स व्हिच आर हियर। ठीक है, व्हाट एल्स डू वी डू? वी कैन यूज आइदर साइड टू गेट अवर सोल्यूशन। हम सेम काम कर सकते हैं राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से, बिकॉज दोनों साइड इक्विलिब्रियम में। यूजुअली व्हाट वी डू इज वी सेलेक्ट द साइड विच हैज लेस नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, समटाइम्स यू वुड फाइंड कि आप एक जगह से सेक्शन करते हैं तो देर आर मल्टीपल अननोन्स इन वंस ऑन बोथ साइड। सो एक साइड पे ज्यादा अननोन्स भी हो सकते हैं, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि देर इज फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन हियर विच यू डू नॉट नो। तो अगर आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो इफ यू डू नॉट नो द रिएक्शंस, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देन यू विल नीड टू फाइंड आउट दीज एडिशनल अननोन्स एज वेल। तो हम उससे बचने के लिए वी कैन बेसिकली जस्ट चूज वन साइड विच इज द साइड विद लेस नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो ये तरीकेकार होता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जैसे कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और हम उसमें से अगर एक पार्ट को चूज कर लेंगे तो वी विल गेट सॉर्ट ऑफ अ रिजिड बॉडी विच वी कैन देन यूज टू फाइंड आउट अवर अननोन्स। और हमने जो बात की थी कि जो हमारे सेक्शनिंग के बाद जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही होंगी, बी डी मेंबर के अंदर फोर्स एफ बी डी प्रोड्यूस हो रही है, बी ई के अंदर फोर्स एफ बी ई प्रोड्यूस हो रही है, सी ई के अंदर फोर्स एफ सी ई प्रोड्यूस हो रही है। दीज फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन द जॉइंट्स डायरेक्टली। तो आपको ये पार्ट जो है जिसमें आप सेक्शन कर रहे हैं, ये एडिशनल पार्ट, यानी हाफ मेंबर यहाँ पे, हाफ मेंबर यहाँ पे, हाफ मेंबर यहाँ पे, यू डोंट नीड टू ड्रॉ इट, यू कैन डायरेक्टली पुट द फोर्सेस ऑन द जॉइंट्स। जिस साइड पे आप ले रहे हैं, जो साइड आपने सिलेक्ट किए, उस साइड के ऊपर ये मेंबर्स जिस जॉइंट से कनेक्टेड है, आप इनकी फोर्सेस डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बी के ऊपर हमारे पास 2 इंटरनल फोर्सेस आ रही थी सेक्शनिंग की वजह से, और सी के ऊपर एक फोर्स आ रही थी, वो हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, आगे चले, सवाल सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड आइडिया हाउ टू प्रोसीड। बहुत ही बेसिक से सवाल है, एंड इट इज बेसिकली समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिस्कस। हमने किया क्या है, हमने कहा था कि अगर हमारे पास बीच में 3 मेंबर्स हैं और हमें सिर्फ ये 3 मेंबर्स की फोर्सेस रिक्वायर्ड हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेक्शन इट हियर एंड वी कैन फाइंड आउट द 3 अननोन्स। ठीक है, तो उससे सिमिलर एक हमें काम करना है। तो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिटरमिन द फोर्सेस इन द मेंबर्स GE
GC एंड BC, तो इन 3 मेंबर्स की फोर्सेस हमें रिक्वायर्ड है। ठीक, अगर मैं इसको मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करूंगा तो हाउ वुड आई प्रोसीड? आई वुड फर्स्ट सॉल्व पॉइंट A, then I would solve point G, and then I would solve point B as well. ठीक है, this is how I would proceed with this. So basically what, instead of going to G, what I would have to do A, then B, then G. This is how I would proceed with this problem. ठीक है, तो let's see how we solve this thing. सबसे पहले देखें हमारे पास रिएक्शंस कौन कौन से हैं। हमारे पास A के ऊपर पिन जॉइंट है, सो वी हैव 2 रिएक्शन फोर्सेस इन X and Y at A, and we just have a Y direction reaction in at point D, because D के ऊपर we have a roller support, तो सिर्फ एक रिएक्शन आ रहा है normal to the surface, and so we have 3 reactions. तो अगर मैं अपने पार्ट को सेक्शन कर भी दूंगा from AA, तो what is going to happen? So let's section it here and just see one side. So we can see both sides to analyze कि हो क्या रहा है, and then we can use one side to actually solve our problem. तो अगर मैं इसको AA के ऊपर सेक्शन करता हूँ, then what I can do is I can actually draw either side. So पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर ड्रॉ करूँ तो I don't need to draw this partial parts, मैं सिर्फ ये वाला ट्राइंगुलर पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो चीज़ मैंने डायसेक्ट कर दी है, आई डोंट नीड टू एक्चुअली ड्रॉ इट। तो ABG मेरे पास एक जो ट्राइंगल बन के आ रहा है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसमें मेरे पास फोर्सेस क्या क्या है, मेरे पास 3 इंटरनल फोर्सेस जनरेट हुई हैं, GE, GC और BC की। दीज आर द 3 अननोन्स दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, आपके पास 2 अदर रिएक्शंस इस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, राइट? तो वी हैव 5 अननोन्स इन दिस केस। आप राइट साइड ड्रॉ करके देख लीजिए, तो वी हैव ECD। इंटरनल फोर्सेस हमारे पास वही 3 इंटरनल फोर्सेस हैं जो कि हमने यहाँ से AA सेक्शन किया था, उसकी वजह से आ रही हैं। आपके पास एक रिएक्शन आ रहा है और 2 अप्लाइड फोर्सेस भी आ रही हैं, तो वी हैव 4 अननोन्स इन दिस केस। ठीक है, these 2 are separately considered to be rigid bodies. तो एक रिजिड बॉडी अगर 2 डायमेंशंस के अंदर हो तो we can solve for 3 unknowns. We cannot solve for 5 or 4 unknowns in these cases. तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो what do? We first solve for the reactions of the entire structure. तो ये बात हमने मेथड ऑफ जॉइंट्स में भी देखी थी। इफ वी कैनॉट फाइंड अ जॉइंट जिसके ऊपर सिर्फ 2 अननोन्स हो तो पहले हम रिएक्शंस निकालते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर। तो इफ यू कैनॉट फाइंड अ सेक्शन जिसके ऊपर आपके पास सिर्फ 3 या 3 से कम अननोन हो, तो व्हाट डू? वी फर्स्ट हैव टू फाइंड द रिएक्शन ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर। तो पहला काम हमें जो करना पड़ेगा वो हमें रिएक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे, और रिएक्शंस फाइंड करने के लिए वी डू द एग्जैक्ट सेम एक्सरसाइज जो कि हम मेथड ऑफ जॉइंट्स में करते हुए आ रहे हैं। आपको पूरे स्ट्रक्चर को एज अ रिजिड बॉडी कंसीडर करना है, और रिजिड बॉडी कंसीडर करने के बाद आपने इस पर समेशन FX, समेशन FY और समेशन M की इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो समेशन FX की इक्वेशन इज दिस। तो यू हैव हाउ मेनी फोर्सेस? तो हम कर क्या रहे हैं? अच्छा, एक चीज मैंने इधर मिस कर दी है। We are applying this thing to the entire structure, so we have to consider all the forces. So we have to consider the reactions at A, reactions at D, and we have to consider all the applied forces as well. सही है, तो हम सेक्शनिंग को अभी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो समेशन FX जब मैंने पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई किया तो आई हैव अ फोर्स AX एंड दैट इज इट। अप्लाइड फोर्स इज 400। ठीक है, तो AX plus 400 is equal to 0. AX comes out to be minus 400 newtons. Y के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो Y के ऊपर हमारे पास कितने रिएक्शंस है? We have AY and we have DY, 2 रिएक्शंस, और हमारे पास एक अप्लाइड फोर्स है which is 1200 in the minus Y direction, तो हमने उसको नेगेटिव ले लिया। ठीक हो गया। There are the 3 unknowns that we have in the system. 2 equations से solve नहीं हो सकते, तो we have to actually consider our third equation as well.
तीसरी इक्वेशन मोमेंट की होती है। मोमेंट आप किसी भी पॉइंट के ऊपर लिख सकते हैं, बट यू हैव टू बी इंटेलिजेंट एंड सेलेक्ट अ पॉइंट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स आपके सिस्टम से गायब हो जाए। अगर मैं पॉइंट ए के ऊपर अपनी मोमेंट की इक्वेशन लिखूंगा तो मेरा ए एक्स और ए वाई का कोई भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने समेशन एम ए लिख दिया। बट इफ यू लुक एट पॉइंट डी, इवन पॉइंट डी पे अगर मैं मोमेंट की इक्वेशन लिखूंगा तो डी वाई का कोई मोमेंट नहीं होगा, बट ए एक्स इज ऑल्सो पासिंग थ्रू डी, तो ए एक्स का भी कोई मोमेंट नहीं होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप ए पे मोमेंट लें या आप डी पे मोमेंट लें, इट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। आपके पास सिर्फ एक अननोन बाकी रहता है एंड यू कैन सॉल्व फॉर इट, बट यू शुड नॉट टेक द मोमेंट लेट्स से एट पॉइंट जी या पॉइंट ई, because that does not help you. You will have multiple unknowns and you will have to then simultaneously solve the equation. So you have to intelligently choose किस point पे मोमेंट लेना है। ठीक हो गया। तो हमने ए पे मोमेंट लिया। ए पे जब हमने मोमेंट लिया तो हमारे पास कितनी फोर्सेस के मोमेंट्स आ रहे हैं? 1200 न्यूटन का मोमेंट आ रहा है, 400 न्यूटन का मोमेंट आ रहा है और dy का मोमेंट आ रहा है। 1200 newtons is trying to rotate this system clockwise. Same thing with 400. This is trying to rotate clockwise about A, but dy is trying to rotate anti-clockwise about A. तो dy का मोमेंट इज पॉजिटिव, 400 और 1200 के मोमेंट नेगेटिव हैं, ठीक है। dy का पॉजिटिव। मोमेंट आर्म्स निकालने के लिए यू शुड बी एबल टू डू इट बाय नाउ। A से लेके 1200 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 8 मीटर्स। A से लेके 400 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 मीटर्स और A से लेके dy तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 12 मीटर्स। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। देयर इज जस्ट वन अननोन इन द सिस्टम, यू कैन सॉल्व फॉर दैट अननोन व्हिच इज dy। ठीक हो गया। We can plug this in the first equation. There's basically equation marked as 1. मैंने लेबल किया हुआ है इसको 1 so that we can refer to this later on. तो plugging this in equation 1, what do we get? We get ay equals to 300 Newton. हमने ay निकाल लिया dy plug in करके। दो चीज़ें पता चल गई। ax already हमें पता चल गया था, तो we are actually in a very good position to proceed with the problem. We know the 3 reactions that we need in order to select either of the two cases. अब हमारे पास एक्चुअली दो पॉसिबिलिटीज है। हम रिजिड बॉडी 1 या रिजिड बॉडी 2 दोनों को यूज करके अपने सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट वन। तो हियर वी सिलेक्ट द सेकंड पार्ट। तो हम बेसिकली राइट साइड वाली चीज को यूज करके सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं। यू वांट टू यूज वन, यू कैन यूज इट एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ठीक है। 3 अननोन यहाँ पे भी हैं, 3 अननोन यहाँ पे भी। रिजिड बॉडी या रिजिड बॉडी की इक्वेशंस अप्लाई होंगी तो समेशन एफ एक्स अप्लाई होगा। एक्स डायरेक्शन में सिस्टम के अंदर क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं? यू हैव प्लस 400 माइनस एफ जी ई माइनस एफ बी सी और एफ जी सी का एक्स कॉम्पोनेंट। अब एफ जी सी का एक्स कॉम्पोनेंट निकालने के लिए यू जस्ट लुक एट दिस ट्राइंगल राइट हेयर। ठीक है। तो दिस साइड इज 4 एंड दिस साइड इज 3। सो फॉर GC you have a similar triangle जिसका horizontal side is 4, vertical side is 3 and then the hypotenuse we know will become 5. So it's a 3, 4, 5 similar triangle which is applicable on GC. ठीक है। तो ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो I can even write this here so that we can move on. So basically what I'm saying is कि we have a similar triangle here and this similar triangle is 4, 3 and 5। ठीक है। तो जो इसकी horizontal side होगी that will turn out to be 4/5। तो ये 4/5 वाली साइड हमने यहाँ पे लिख दी। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। 3 अननोन फोर्सेस थी, तीनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ गए, प्लस 400 विच इज एन अप्लाइड फोर्स, ऑल ऑफ देम समेशन इक्वल्स टू 0। वी आर लेबलिंग दिस एज बी 2b, कुछ में 2 लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे b लिख दिया। डजंट रियली मैटर, हमने सिर्फ इक्वेशन को लेबल करना है ताकि हम इसमें बाद में अपने रिजल्ट्स को प्लग इन कर सकें। समेशन fi लिखना था। समेशन fi के लिए हाउ मेनी फोर्सेस डू वी हैव? वी हैव dy, वी हैव fgc का y component
and we have minus 1200. So dy is positive, minus 1200 is also written here. FGC का y component is 3/5, that is written here. dy is known to us, ठीक है, dy हमें पता है, हम रिएक्शंस पहले निकाल चुके हैं. You can solve for FGC directly from this equation. Solving you get 500 newtons. ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, dy की वैल्यू प्लग इन करके you are going to get 500 newtons. This came out to be positive, which means that we are correct about the assumed direction. तो GC की जो assumed direction थी, tension थी, that is correct because we got a positive result here. So this is okay. So this is in tension. ठीक हो गया, आगे चलें. और हमने क्या करना है, हमने मोमेंट की इक्वेशन लिखनी है. अब इसमें मोमेंट की इक्वेशन आप किस पॉइंट के ऊपर लिखेंगे तो आपका काम आसान होगा. यू वांट टू एलिमिनेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस. उसके लिए द बेस्ट पॉइंट विच आई कैन सी इज पॉइंट सी. इसके ऊपर दो अननोन फोर्सेस का मोमेंट नहीं जनरेट होगा. ठीक है, अगर मैं डी पे लेता हूं, जीसी का भी मोमेंट होगा, जीई का भी मोमेंट होगा. अगर मैं ई पे लेता हूं तो मेरे पास GC का मोमेंट भी होगा और BC का मोमेंट भी होगा. ठीक है, तो इफ आई सिलेक्ट पॉइंट C फॉर माई मोमेंट, आई एम गोइंग टू गेट ओनली वन अननोन इन द सिस्टम. तो मैंने समेशन MC लिख दिया है. हाउ मेनी फोर्सेज आर कॉजिंग मोमेंट अबाउट C? dy इज कॉजिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है, GE is causing an anti-clockwise moment. 400 is causing a clockwise moment. जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस थे वो हमने मेन डायग्राम से देख के यहाँ पे लिख दिए हैं. There is just one unknown in the system, FGE. We can solve for FGE. And what you are going to find is FGE comes out to be negative, which basically means assumed direction is wrong and the actual कंडीशन इज कि मेंबर GE जो है दैट इज इन कंप्रेशन. ठीक हो गया. आई कैन प्लग बोथ ऑफ दीज अननोन्स इन इक्वेशन B right here and that is going to lead to the final unknown force which is FBC and that comes out to be 800 newtons in compression as well. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इट. ये सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. 3 अननोन्स निकालने थे, हमने सिर्फ एक सेक्शन बनाया, उसको सॉल्व कर लिया एंड वी वर डन विद द प्रॉब्लम. अगर मुझे यही काम यूजिंग मेथड से ज्वाइन करना पड़ता तो पहले मैं रिएक्शंस निकालता. आई वुड नीड टू फाइंड द रिएक्शंस बिकॉज रिएक्शंस के बगैर आई कैन नॉट प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम. देन आई वुड हैव प्रोसीडेड टू फ्रॉम A and then move on to the other points as well. पहले मैं A को सॉल्व करता, मुझे B को सॉल्व करना था, बट B के ऊपर I can see that this is a zero force member. तो जो AB आ रहा है that is going to be BC and then at G I would have found out कि मेरे पास ये हट गया तो मेरे पास सिर्फ 2 अननोन्स रह गए. I would have been able to calculate this as well. But that is a longer procedure compared to this because इसमें आपने सिर्फ एक रिजिड बॉडी कंसिडर की है और उसके ऊपर अपनी समेशन FX, समेशन FY और समेशन M की इक्वेशंस अप्लाई की. ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम इज डन. एक प्रॉब्लम को थोड़ा सा और देख लीजिए. वी विल सी कि हम इसको कितना कंप्लीट करते हैं. एट सम पॉइंट आई थिंक इन द मिडल वी माइट नीड टू स्टॉप, बट लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू. एटलीस्ट वी कैन बिल्ड इट अप. प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर है जिसकी मुझे फोर्स रिक्वायर्ड है, दैट इज मेंबर EB. ठीक है, अब अगर मुझे इस सिस्टम को, इस पूरे ट्रस स्ट्रक्चर को सॉल्व करना है यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स. अच्छा, बाय द वे इसमें इन्होंने रिएक्शन फोर्सेस पहले से प्रोवाइड की हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो वी डिड नॉट नीड टू कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्सेस, दे आर नोन टू अस. बट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन ऑर्डर टू गेट टू EB, हम कैसे चलेंगे? वी विल स्टार्ट एट A. अगर मैं मेथड जॉइंट से जा रहा हूँ, A के बाद आई कैन नॉट सॉल्व B के ऊपर अगर AB मुझे नोन हो गया है तो 1, 2, 3 एंड 4 अननोन, आई कैन नॉट सॉल्व B. आई विल नीड टू जंप टू F. फ्रॉम F आई विल नीड टू जंप टू E.
तो 2 स्टेप्स हमें यहाँ पे वाले सॉल्व करने हैं, उसके बाद वील हैव टू जंप टू ई एंड गेट अवर रिजल्ट। पॉसिबल है, ठीक है, इट इज कंप्लीटली पॉसिबल टू डू दैट, बट यू विल फाइंड आउट दैट इन दिस केस यू विल जस्ट नीड टू कंसिडर 2 steps to actually get the result instead of 3. Now, अब अगर हम ये वाली चीज़ को देखें तो बुक जो जिस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करने का तरीका बता रही है वो ये कह रहे हैं कि in order to find E, what we can do is we can section our structure using this line BB. अगर मैं सेक्शन को लाइन को BB से सेक्शन करता हूँ अपने ट्रस्ट स्ट्रक्चर को, what do you actually get? If I section my structure in such a way कि मेरे पास सिर्फ एक जॉइंट उस सेक्शन में आ रहा है, then this is essentially the same thing as the method of joints. क्योंकि इसमें सिर्फ पॉइंट E आ रहा है, सारी फोर्सेस पॉइंट E के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, and since this is a point you cannot apply summation m to this is just summation fx and summation fy जो मेथड ऑफ जॉइंट्स में हम करते हुए आ रहे हैं। पॉइंट इज मेथड ऑफ सेक्शंस के अंदर भी इट इज एंटायरली पॉसिबल टू सेक्शन ऑफ अ सिंगल जॉइंट, विच बेसिकली मीन्स कि आप मेथड ऑफ जॉइंट्स की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं विद इन द मेथड ऑफ सेक्शंस, ठीक है। तो द बुक व्हाट द बुक सेज कि आप इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट सेक्शन दिस स्ट्रक्चर एट BB, देयर आर दिस 3 अननोन्स इन दिस स्ट्रक्चर। इसके ऊपर आप समेशन fx और समेशन fy की इक्वेशंस लगाएंगे तो 3 आप अननोन नहीं फाइंड कर सकते, आप सिर्फ 2 अननोन फाइंड कर सकते हैं। तो यू नीड टू डू समथिंग एल्स टू एक्चुअली फाइंड वन ऑफ दीज 3 फोर्सेस। उसके लिए द बुक सेज यू कैन गो अहेड एंड सेक्शन दिस स्ट्रक्चर विद लाइन AA, और जब मैं इससे अपने सिस्टम को सेक्शन करूंगा आई कैन देन फाइंड आउट FED। अब दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग इफ यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट दे आर डूइंग इज कि आपके पास इस सेक्शन के अंदर भी 4 अननोन्स हैं, FED, FEB, FB और FAB, बट इफ यू लुक 3 मेंबर्स जो है वो पॉइंट B से कनेक्टेड है, यानी कि उनकी जो फोर्सेस होंगी चाहे वो टेंशन हो या चाहे वो कंप्रेशन हो, these forces are going to pass through B। तो अगर मैं B के ऊपर मोमेंट लूंगा सिस्टम में सिर्फ एक अननोन रह जाएगा, दैट इज FED, और FED को यूज करके आई कैन प्लग इट बैक हेयर एंड फाइंड आउट द 2 रिमेनिंग अननोन्स, जिसमें से सिर्फ एक चीज मुझे रिक्वायर्ड है FEB, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज गो एंड रीड दिस थिंग इन द बुक, जो पूरा सोल्यूशन बुक के अंदर अवेलेबल है। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ट्राइड टू डू अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शनिंग, ताकि हम बुक में इसी सवाल का एक मेथड अवेलेबल है, एक मेथड हम अभी देख लेंगे। तो जस्ट टू रीइंफोर्स द पॉइंट कि सेक्शनिंग यूनिक नहीं होती, यू कैन गेट द सेम रिजल्ट्स बाय सेक्शनिंग द सेम स्ट्रक्चर इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो लेट्स सी, तो बुक के अंदर ये 2 सेक्शंस किए हुए थे। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्राई एंड सेक्शन इट अ डिफरेंट वे। हमारा काम क्या है, हमारा पर्पज इज कि हमने इवेंचुअली यही जॉइंट E ही कंसीडर करना है। इसके अंदर 3 अननोन्स, एक हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स है और 2 एडिशनल फोर्सेस हैं। आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट वन ऑफ देम, ठीक है। इनमें से कोई सी एक अगर मुझे पता चल जाएगी देन आई एम डन। तो मैं वापस जॉइंट E की इक्वेशन समेशन fx समेशन fy लिखूंगा एंड बेसिकली फ्रॉम देयर आई कैन प्रोसीड टू बेसिकली प्रोसीड टू फाइंड FEB, ठीक है ना। तो बुक में ये काम उन्होंने इस तरीके से किया था दैट दे फाउंड आउट FED, सही है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेक्शन आवर स्ट्रक्चर इन अ डिफरेंट वे। तो लेट्स सेक्शन इट विद दिस रेड लाइन राइट है, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है इससे आप अपने स्ट्रक्चर को सेक्शन कीजिए। एंड इफ वी सेक्शन इट लाइक दिस, व्हाट डू वी गेट, जो भी मेंबर डिवाइड हो रहा है यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ इट, यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द रिमेनिंग मेंबर्स। तो अगर आप सिर्फ लेफ्ट साइड को कंसीडर करें, लेफ्ट साइड पे कितने मेंबर्स हैं जो कि आपके डिवाइड हो रहे हैं, FE डिवाइड हो रहा है, FB डिवाइड हो रहा है, AB डिवाइड हो रहा है। तो इन तीनों को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इन तीनों की फोर्सेस हम कंसीडर करें। बच क्या गया, बच गया सिर्फ AF। तो एसेंशियली व्हाट वी हैव इज वी हैव दिस मेंबर AF जिसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं, EF, FB और AB।
ठीक है। देयर आर सम अप्लाइड फोर्सेस एज वेल, ठीक है। तो एफ के ऊपर देयर इज अ वर्टिकल 3000 न्यूटन फोर्स, ए के ऊपर 1000 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स भी है, और एक रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन 4000 न्यूटन का वो भी लग रहा है, जो कि हमें निकाल के ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, तो वी डोंट नीड टू रिकैलकुलेट इट। ठीक, तो इफ वी कैन अप्लाई our rigid body equations to this structure right here, we can find out FEF, and we can, once we find FEF, we can go back here. FEF पता चल जाएगा, सिस्टम के अंदर सिर्फ दो अननोन्स रह जाएंगे, यू कैन फाइंड आउट FEB विच इज द डिजायर्ड थिंग। तो हमें दो स्टेप्स करना है, एक स्टेप हमारे ये है कि हमें ये स्ट्रक्चर सॉल्व करना है, और दूसरा स्टेप हमारे ये है कि फिर हम अपने जॉइंट ई की इक्वेशंस लिखें। ठीक, तो तीन स्टेप्स थे इनिशियली हमारे पास कि पहले हम पॉइंट ए सॉल्व करें, फिर पॉइंट एफ सॉल्व करें, फिर पॉइंट ई सॉल्व करें। वी हैव रिड्यूस्ड इट डाउन टू 2 स्टेप्स। तो हमने सिर्फ सेक्शन ए एफ की इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद फिर जॉइंट ई की इक्वेशंस लिखनी है। एंड आवर लेक्चर हियर, and in Tuesday's lecture we are going to continue with this problem, and we are going to try and solve some end of chapter problems as well to reinforce the concepts of the method of sections. So thank you very much. Assalamu alaikum.